You all know that urinary system consists of pair of kidney, pair of ureter, bladder and a urethra. So in this class we will discuss the histology of all these organs: kidney, ureter, bladder and urethra. First about kidney. Kidney का gross you all have discussed about the gross of kidney. So kidney are pair of bean-shaped organ that is situated on the posterior abdominal wall on each side of the vertebral column. Function क्या है kidney का? Last bench. If you don't want to attend the class, please leave. So kidney helps in purification of blood, removal of metabolic waste products. और क्या करता है? Conserve करता है fluid and electrolyte balance को maintain करता है, as well as it produces erythropoietin, renin and vitamin D. ये सब आपको पता ही है. A quick revision of the gross structure so that you can easily understand the histology of kidney. Okay. So grossly, when we cut the longitudinal section of kidney, so on naked eye examination, you will see the two parts of the kidney. A part is called the kidney proper, and a space which is just passes through the hilum of the kidney. This space is known as renal sinus. So on naked eye examination, when you cut the kidney का हो गया आपको डेमो, हाँ सबको पता होगा. किडनी को लॉन्गिट्यूडनल कट करके सेक्शन आपने देखा होगा. So it got two parts जहाँ पे हाइलम होता है, that occupies a space known as renal sinus, and the remaining part is called kidney proper. The whole kidney is lined by a capsule known as renal capsule. This capsule not only covers the outside surface of the kidney as well as it lines the renal sinus. जो space है उसको भी ये capsule क्या करता है? line करता है. ठीक है. The part called kidney proper, it is again divided into two parts: an outer cortex that is a dark staining area, reddish brown area, and a pale staining structure known as medulla. So सबसे बाहर capsule है. Otherwise kidney proper has got two parts: an outer cortex and an inner medulla. So we will start from the renal sinus. Renal sinus में सबसे पहले एक funnel shaped dilatation होगा, that is known as renal pelvis. ठीक है. Renal pelvis divide करेगा और क्या बनाता है? It will form the 2 to 3 major calyx. This major calyx again divides to form the minor calyx, which is approx 5 to 11 in number. तो ये major calyx था. Major calyx divide and form these minor calyx. Minor calyx has these conical shaped projection. These projection are known as, इनको क्या बोलते हैं? Minor calyx जो पिरामिड में इंडेंट करता है conical shaped structure, that is called renal papilla. What is called? It is called renal papilla. So this ये जो structure है, and this structure is renal pyramid. It is a part of medulla. So जो indentation होता है minor calyx का on the apex of renal medulla, that is called the renal papilla. और यहीं पे opening होती है किसकी? Collecting duct. Duct of Bellini opens here. So this opening का जो area होता है उसको क्या बोलते हैं? Area scribosa. ठीक है. That area जहाँ पे opening होगी connecting duct की, that is known as area scribosa. ठीक है. Now we'll come to the medulla. Medulla में क्या हो गया? Medulla has got कितने minor calyx थे? 5 to 11. So similar it got 5 to 11 these conical structures. These conical structures are known as renal pyramid, which has an apex and a base. The base faces towards the cortex and the apex is towards the minor calyx. और जो apex का minor calyx में जो part produce कर रहा है, ये इसी conical structure को हम क्या बोलते हैं? Renal papilla, which has the opening of collecting duct. So these last stand up. खड़े हो जाओ. 10 सेकेंड जो लास्ट है तुम्हारे जन. क्या हुआ तुम्हें? हाँ, जो भी पूछना है ना, या तो लेक्चर के बाद पूछना, या तो बाहर चले जाओ, फिर जिससे भी पूछना होगा पूछना. उसको भी ले जाओ जिससे पूछ रहे हो. बैठ जाओ. So these conical structures are known as renal pyramid. ठीक है. In which and outside it is the, ये क्या है? Cortex है. Cortex का दो पार्ट है. जो the part which is above the, जो कैप कर रहा है renal pyramid को, these
स्ट्रक्चर्स आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल आर्चेस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो रिमल पिरामिड के ऊपर कॉर्टेक्स आर्च कर रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज cortical arches, and the part of the cortex which get into the medulla in between the two renal pyramids, these structures are known as renal column. तो medulla में आपको क्या मिला, renal pyramids मिला, और वो the portion of the cortex which comes in between the two renal pyramids is known as renal column. और जो बाहर cortex में है, renal pyramid के ऊपर जो cortical area है, that is known as cortical arches. ठीक है, और क्या आपको दिख रहा है, इन द रीनल पिरामिड यू आर गेटिंग दीज स्ट्राइशंस आर नोन एज मेडुलरी रेज. तो व्हाट इज मेडुलरी रेज, मेडुलरी रे इज ड्यू टू द जो कलेक्टिंग डक्ट्स और टिब्यूल्स होंगे ना, उनकी वजह से ये फॉर्मेशन होता है, और विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला टू द कॉर्टेक्स. मेडुला में स्टार्ट होकर के कहाँ जाता है, एक्सटेंड करता है. तो ये किसकी वजह से है, दीज आर ड्यू टू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड टिब्यूल्स. So these are medullary rays. Now, what is a lobe of kidney? Kidney में fetal life में the whole kidney is lobulated. Later on, it fuses to form a smooth kidney. ठीक है? So each lobe of kidney, तो वो क्या होगा? The renal pyramid, the cortical area above the renal pyramid, and the adjoining part of renal column. This area is called a lobe of kidney. एक lobe of kidney ये होगा, जिसमें क्या आएगा? renal pyramid आएगा, उसके ऊपर का cortical arch आएगा, और दो साइड के जो रीनल कॉलम्स के पार्ट आएंगे. तो दिस फॉर्म अ लोब ऑफ किडनी. व्हाट इज लोब्यूल ऑफ किडनी, लोब्यूल ऑफ किडनी वो होगा दिस एक मेडुलरी रे, और उसके आसपास की जो कॉर्टिकल एरियाज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लोब्यूल ऑफ किडनी. ठीक है, तो लोब जिसमें रीनल पिरामिड और बाकी उसके साइड का रीनल कॉलम आएगा तो उसको लोब कहेंगे, और एक मेडुलरी रेज और उसके आगे आसपास की जो कॉर्टिकल एरियाज होंगे, दैट इज कॉल्ड द लोब्यूल ऑफ किडनी, विच इज अ फर्दर डिवीजन ऑफ लोब ऑफ किडनी. ये स्ट्रक्चर्स अभी समझ में आ गए. तो दिस इज द यही आपका जो इंडेंटेशन है, इसी को रीनल पैपिली कहते हैं. नाउ विल कम टू द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एंड देन विल सी द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स. तो अभी आपको मैंने ये बताया था, ये क्या हो गया, अगर आउटर ये कैप्सूल है तो दिस एरिया इज नोन एज कॉर्टेक्स. ये रीनल पिरामिड का एक एरिया दिखाया गया है, तो दिस इज इन द मेडुलरी रीजन, तो दिस इज द मेडुला, और ये आपका माइनर कैलिक्स है. और यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये मेडुलरी रे को सिग्निफाई कर रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट एंड टिब्यूल विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेडुला इन द कॉर्टेक्स. तो ये आपका मेडुलरी रे हो गया. और ये जो कलेक्टिंग डक्ट ओपनिंग इनटू द माइनर कैलिक्स, तो ये जो ओपनिंग एरिया है ना, ये कहाँ ओपन कर रहा है, रीनल पैपिली में, है ना. ये जो इंडेंटेशन है रीनल पिरामिड का इन द माइनर कैलिक्स, दिस इज नोन एज रीनल पैपिली, और जो ओपनिंग है उस एरिया को एरिया सिरबोसा कहते हैं. ठीक है, और आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है. नाउ विल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर किडनी का देखें, तो किडनी हैज गॉट 1 to 3 million ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, किडनी में 1 to 3 million यूनिफेरस ट्यूब्यूल है. यूनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल. ठीक है, नेफ्रॉन होता है और कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ डक्ट एंड ट्यूब्यूल होता है. तो नेफ्रॉन भी कितनी होगी, 1 to 3 million होगा. और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन फर्दर डिवाइड होगा किस चीज में, ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर सिस्टम में. ठीक है, किस चीज में होगा, तो दिस इज दी ग्लोमेरुलस, और जो ये सिस्टम है दैट इज द ट्यूबुलर सिस्टम. दिस ट्यूबुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आएगा आपका, बोमन्स कैप्सूल, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन आपका लूप ऑफ हेनले, एंड देन डीसीटी. तो दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ द ट्यूबुलर सिस्टम. ठीक है ना, तो स्टार्ट होगा बोमन्स कैप्सूल से और टिल डीसीटी. तो ये दोनों मिला करके क्या बना आपका, नेफ्रॉन हुआ. ठीक है ना, तो नेफ्रॉन में दो चीजें हो गई, ग्लोमेरुलस. व्हाट इज ग्लोमेरुलस, खड़े हो जाओ, क्या है ग्लोमेरुलस, खड़े हो, बताओ ग्लोमेरुलस क्या है, क्या है ग्लोमेरुलस. हाँ, इट इज an anastomotic stuff of capillaries है which is inside the
Bowman's capsule. So that is called the glomerulus. Glomerulus along with the Bowman's capsule. इसको क्या कहते हैं? हाँ, रीनल कॉर्पसल या मैलपिजियन कॉर्पसल कहते हैं, जिसमें आपका ग्लोमेरुलस आया, दैट इज द टप ऑफ कैपिलरीज एंड जो कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल है, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं? रीनल कॉर्पसल कह रहे हैं. तो दिस इज द रीनल कॉर्पसल और ये पूरा डक्ट सिस्टम है. तो दिस रीनल कॉर्पसल कहाँ रहता है आपका? इट इज लोकेटेड विद इन द कॉर्टेक्स, है ना. तो ये आपको इस वाले सेकंड वाले इमेज में दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स जो अभी मैंने पूरा बताया माइक्रोस्कोपली आपको क्या क्या मिलेगा. तो दिस रीनल कॉर्पसल इज इन द कॉर्टेक्स, और जो पीसीटी है और डीसीटी एज वेल एज द अपर जो स्टार्टिंग पार्ट होगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का और डक्ट्स का, दैट इज लाइंग विद इन द कॉर्टेक्स. बाकी नीचे मेडुलरी पोर्शन में क्या मिलेगा आपको? इन दिस यू विल गेट द लूप ऑफ हेनले एज वेल एज द लोअर पोर्शन, और जो एंड होगा कलेक्टिंग डक्ट का, और बाकी कुछ ट्यूब्यूल्स यहाँ पे भी आएंगे. तो दैट कलेक्टिंग, तो आपको जब किडनी का हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखोगे तो जस्ट बीनीथ द कैप्सूल यू विल गेट द कॉर्टेक्स और उसके डीप में मेडुला. तो कॉर्टेक्स में आपको बहुत सारी ग्लोमेरुलस दिखेंगी और बोमेंस कैप्सूल मिलेंगे, तो उनके सेक्शंस मिलेंगे एज वेल एज और किसका सेक्शन मिलेगा? पीसीटी का सेक्शन मिलेगा, डीसीटी का सेक्शन मिलेगा, और कुछ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट भी मिलेंगे. वेयर एज इन मेडुला यू विल गेट the most of the collecting tubule, duct as well as loop of Henle ka thin or thick segment ka section you will get. So this is the whole microscopic structure. Now type of nephrons. So basically there are three types of nephrons डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द रीनल कॉर्पसल. ठीक है, जो आपका रीनल कॉर्पसल है वो कहाँ लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग नेफ्रॉन थ्री टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कॉर्टिकल और द सब कैप्सुलर नेफ्रॉन. तो द कॉर्टिकल और द सब कैप्सुलर समझ में आ ही रहा होगा कि कॉर्टेक्स के रीजन में है बट जस्ट बीनीथ द कैप्सूल. तो दैट वन इज कॉल्ड द कॉर्टिकल और द सब कैप्सुलर नेफ्रॉन. तो ये जो सबसे कैप्सूल सबसे ऊपर दिख रहा है आपको और कैप्सूल के जस्ट नीचे ये वाला जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्टिकल और द सब कैप्सुलर नेफ्रॉन विच इज लोकेटेड इन द आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स. एंड इसका जो ट्यूबुलर सिस्टम होगा ना, दैट एंड्स इन द आउटर पार्ट ऑफ द मेडुला, और ये क्या होगा? ये शॉर्ट होगा. ठीक है, क्या होगा? इसका लूप ऑफ हेनले छोटा होगा और आउटर पार्ट ऑफ द मेडुला में एंड कर जाएगा, और इसका जो रीनल कॉर्पसल्स होगा वो भी आउटर कॉर्टेक्स में होगा जस्ट बिलो द कैप्सूल. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल और द सब कैप्सुलर नेफ्रॉन. The second one is the juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron क्या होता है कि the renal corpuscles which lies at the junction of cortex and medulla. ठीक है, जो cortex ये जो second वाला image में दिखाया गया है, that is the example of juxtamedullary nephron which lies at the junction of cortex और medulla. ठीक है, तो ये सबसे जो inner zone होगा cortex का वहाँ प्रेजेंट होगा, और एज वेल एज जो इसका ट्यूबुलर सिस्टम होगा और जो लूप ऑफ हेनले होगा ये क्या होगा? ये लॉन्ग होगा, और ये कहाँ तक जाएगा? इट विल रीच अप टू द इनर पोर्शन ऑफ द मेडुला. ये एकदम नीचे पोर्शन तक मेडुला में जाएगा. द थर्ड वन इज द इंटरमीडिएट और द मिड कॉर्टिकल. ये इमेज में नहीं दिखाया गया, इट इज इन बिटवीन द टू. ना ये आफ्टर कॉर्टेक्स में है ना ये जंक्शन पे. ये कहाँ है? मिड जोन ऑफ द कॉर्टेक्स में है. तो इसका जो आपका ट्यूबुलर सिस्टम होगा वो क्या होगा? मिड लेग का होगा. So that's why the nephron is of three types: the cortical or the subcapsular, this lies just beneath the capsule. ठीक है, तो इसका ये जस्ट कैप्सूल से होगा तो ये पूरे मेडुला में डीप तक नहीं जा पाएगा, तो इसलिए शॉर्ट होगा इसका लूप ऑफ हेनले. तो सेकेंड इज जक्स्टामेडुलरी, वो इनर पोर्शन में होगा और इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा. द थर्ड वन इज दैट इज इन बिटवीन द टू. And now the renal corpuscles, अभी आपको बताया था कि the renal corpuscle consists of two parts, the glomerulus. Renal corpuscles है क्या? It is a spherical structure है which consists of two parts, a tuft of capillaries known as glomerulus, which is in the a cup-shaped depression structures known as Bowman's capsule. तो ये ग्रीन कलर का जो cup-shaped structure दिखाया गया है, that is called the Bowman's capsule, which gets यही Bowman's capsule किसमें कंटिन्यूस हो जाएगा?
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के, और अंदर में जो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, एंड दीज टू स्ट्रक्चर टुगेदर नोन एज रीनल कॉर्पसेस। ठीक है, so this is the tuft of capillaries. Now this ये जो Bowman's capsule है, it has got two layers. इसकी क्या होती है, दो लेयर होती है, inner visceral and outer parietal layer. The outer parietal layer is lined by squamous epithelium. ये जो बाहर की लेयर है, this it is lined by, ये क्या है, outer parietal layer है, और ये squamous epithelium से lined होती है। Whereas जो inner वाली लेयर है, which is in relation with the glomerular capsule, that is a visceral layer, and it is lined by a special type of cell known as podocytes। इसको क्या बोलते हैं हम, पोडोसाइट। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल से लाइंड होती है, दैट ने उसका नाम क्या है, पोडोसाइट है। तो दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ सेल नोन एज पोडोसाइट, जो कि आपकी टफ ऑफ कैपिलरी को इनर साइड लाइन करेगी। तो ये डिस्टल लेयर है, और जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, वो स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग है, एंड द स्पेस इन बिटवीन द टू लेयर इज नोन एज यूरिनरी स्पेस। दोनों के बीच का जो ये आपको स्पेस दिख रहा है, दैट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज यूरिनरी स्पेस। द बोमन्स कैप्सूल के क्या हो गया, द बोमन्स कैप्सूल इज अ कप शेप्ड डिप्रेशन in which the tuft of capillaries glomerulus lies, and this Bowman capsule, it is divided into two layer, an inner visceral layer which is lined by podocytes, and an outer parietal layer which is lined by simple squamous epithelium। ठीक है, और the space in between the two is known as, तो क्या कहते हैं हम, urinary space कहते हैं। what is it, it is called the, तो ये जो बीच वाला space है, that is called the urinary space। रीनल कॉर्पसेस एक एंड पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है इन कैपिलरीज में, और थ्रू द इफरेंट, आपको ब्लड सप्लाई जब पढ़ाया था किडनी का, उसमें भी बताया था, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड इज कमिंग इन, यहाँ पे एनास्टोमोटिक नेटवर्क बना रहा है, दैट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसको ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, और ब्लड यहाँ से जो बाहर जाएगा दैट इज कॉल्ड द इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज द एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमन आपको थिक दिख रहा होगा, और इफरेंट का थिन है। ठीक है, तो दीज आर द आर्टेरियोल। तो जहाँ पे आपको ये आर्टेरियोल दिख रहा है, इसको हम वस्कुलर पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, वस्कुलर पोल कहते हैं। एंड द अदर पोल जहाँ से बोमन्स कैप्सूल कंटिन्यू हो रहा है पीसीटी में, उसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी पोल कहते हैं या ट्यूबुलर पोल कहते हैं। तो दिस renal corpuscles has got two pole, a pole which is in relation with the afferent and efferent arteriole, जहाँ से वो फिर tuft of capillaries बना रहा है, that is called the, क्या बोलते हैं इसको, इस पोल को क्या बोलते हैं जहाँ से टफ्ट ऑफ दोनों आर्टेरियोल है, ब्लड वेसल है तो वास्कुलर पोल बोलेंगे, और यहाँ से क्या हो रहा है, पीसीटी स्टार्ट हो रहा है, तो और ये क्या था, स्पेस, यूरिनरी स्पेस, तो ये इस एरिया को क्या बोलेंगे, urinary pole। So it has got the two pole, a vascular pole and a urinary pole। So this is all about the renal corpuscles। और क्या है, ये पोडोसाइट्स जो होते हैं ना, these पोडोसाइट्स, इसका क्या होता है, बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस रहते हैं, that processes of these पोडोसाइट्स are called foot process और पेडिकल कहते हैं इसको। नाउ द फिल्ट्रेशन apparatus ऑफ किडनी, किडनी में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो दिस फिल्ट्रेशन, क्योंकि क्या आ रहा है, ब्लड जो कैपिलरीज में क्या आ रहा है, वो ब्लड आ रहा है, अब इसको फिल्टर करके आगे ये करना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये आपको मैंने अभी बताया, ग्लोमेरुलस के रीनल कॉर्पसेस के स्ट्रक्चर, दैट विल फॉर्म अ बैरियर ऑफ फिल्ट्रेशन apparatus which is formed from three structures। what are the three structures? सबसे पहले जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उनकी एंडोथेलियल सेल्स, and these endothelial cells are not continuous, they are fenestrated। इनके बीच में large pores, large spaces होते हैं, that is approx 70 to 90 mm के होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट apparatus का जो फर्स्ट चीज बनाएगा, वो ये जो आपके ग्लोमेरुलर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उसका एंडोथेलियल सेल्स बनाएगा, और these endothelial cells are fenestrated, मतलब बीच में large pores ओपन होंगे, गैप्स प्रेजेंट होंगे। देन उसके बाद क्या आएगा, इन एंडोथेलियल सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, दैट गेट फ्यूज्ड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द पोडोसाइट। तो फ्यूज्ड बेसल लमाइना आपको मिलेगा, सेकेंड लेयर, विच इज फॉर्म बाय द फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियल सेल एज वेल एज द पोडोसाइट। ठीक है, तो वो सेकेंड लेयर मिलेगी। थर्ड लेयर क्या मिलेगा आपको, जो पोडोसाइट्स के फुट प्रोसेसेस है,
वो पेडिकल्स है वो। तो ऑल दीज थ्री, ये क्या करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये करेगा, कंट्रोल करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन apparatus ऑफ किडनी। इट हैज गॉट 3 कंपोनेंट फ्रॉम, आप ग्लोमेरुलस से आप बोमन कैप्सूल तक जाओगे तो 3 लेयर है। पहली लेयर क्या हो गई, दैट इज द एंडोथेलियम की लाइनिंग दैट इज द पेनिट्रेटेड एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। उसके बाद फ्यूज्ड लमाइना बेसल मेम्ब्रेन है, दोनों का ही हो जाएगा, इधर कैपिलरीज है और इधर क्या है, पोडोसाइट्स है। तो दोनों का जो बेसल लमाइना है वो फ्यूज करके सेकेंड लेयर पर आएगा। एंड द थर्ड वन इज फॉर्म फ्रॉम द बेस, ये जो फूड प्रोसेसेस है पोडो, अच्छा ये जो फूड प्रोसेसेस हैं पोडोसाइट्स के, ये इतनी ज्यादा पोडोसाइट्स, ठीक है, जो कि विस्टल लेयर बना रहा था किसका, बोमन कैप्सूल का। तो 1 2 3, और ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल है, इनके बहुत सारे फूड प्रोसेसेस है जिसको हम पेडिकल्स भी कह रहे हैं। अब इन पेडिकल्स के बीच में आप दिख रहा होगा कि ये लार्ज गैप्स प्रेजेंट है। दीज गैप्स आर स्फेरिकल स्पेसेस ऑफ 25 नैनोमीटर, इनको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट, एंड दिस फिल्ट्रेशन स्लिट इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज स्लिट डायफ्राम। क्या कहते हैं इसको, स्लिट डायफ्राम। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन apparatus ऑफ किडनी। तो जो पहला हो गया एंडोथेलियम लाइनिंग, और ये क्या है, यही सिर्फ पेनिट्रेटेड है, बाकी सब कंटेनर्स है ना, क्योंकि जो फूड प्रोसेसेस के बीच का गैप है दैट इज आल्सो फिल्ड बाय द थिन मेम्ब्रेन नोन एज स्लिट डायफ्राम। है तो बीच में फूड प्रोसेसेस के बीच में भी गैप है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लिट कह रहे हैं, ठीक है। बट वो स्लिट किस चीज से कवर्ड है, बाय द थिन मेम्ब्रेन डायफ्राम से कवर्ड है, तो वो भी कंटिन्यूअस हो गया। तो पेनिट्रेटेड पार्ट कौन सा है, ओनली द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। एंड इसका काम क्या है, इट विल रेगुलेट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नाउ हिस्टोलॉजी में आपको क्या दिखेगा, इन सारी जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताई है सबकी लाइनिंग एपिथेलियम दिखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस आपको दिखेगा, राउंड स्ट्रक्चर, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ठीक है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड दी ग्लोमेरुलस, विच किससे बना है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी से मिला है। उसके बाद आपको वो कहाँ होगा, दैट इज विद इन द कप शेप डिप्रेशन बोमन कैप्सूल, जिसकी 2 लाइनें होगी, बाहर वाली तो क्या होगी, स्क्वामस एपिथेलियम होगी, और जो अंदर होगी वो पोडोसाइट से बनी हुई होगी। नाउ आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस वाले इमेज में है ना, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको हिस्टोलॉजिकली में दिखेगा। तो आपको अभी मैंने बताया था कॉर्टेक्स में क्या क्या दिखेगा, ग्लोमेरुलस, पीसीटी दिखेगी, ये इसका भी थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा, डीसीटी दिखेगा, और अपर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल दिखेगा। बाकी जो ये बीच के है लूप ऑफ हेनले और लोअर पोर्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, ये आपको कहाँ मिलेगा, मेडुलरी रीजन में मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ग्लोमेरुलस ऐसा मिलेगा, दिस इज द सेंट्रल ग्लोमेरुलस है विच इज फॉर्म बाय द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, या एनास्टोमोस होकर कैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, और इट इज लाइन बाय द, कैसे से लाइन है, पोडोसाइट से, और बाहर में जो आपको मिल रहा है दैट इज द पेराइटल लेयर विच इज लाइन बाय स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और बीच में जो गैप है वही गैप क्या है, यूरिनरी स्पेस है, तो वो एम्प्टी स्पेस दिखेगा आपको, व्हाइट स्पेस दिखेगा, तो दैट इज द यूरिनरी स्पेस। अब नेक्स्ट इसके बाद जाओगे तो ट्यूबुलर सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट आपको क्या मिल रहा है, पीसीटी। पीसीटी की जो लाइनिंग एपिथेलियम होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल से लेकर के लो कॉलमनर होती है। क्या होती है, मैक्सिमम तो सिंपल क्यूबॉइडल होगी, कहीं कहीं लो कॉलमनर भी दिखता है, तो ठीक है, एज वेल एज तो सिंपल क्यूबॉइडल टू लो कॉलमनर इसकी एपिथेलियम होगी, और इसके जो आपका सरफेस पे क्या आपको मिलेगा, माइक्रोविलाइज मिलेगी, दैट गिवन इट अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है ना, जैसे जीआईटी में पढ़ा था ना आपने कि माइक्रोविलाइज पेयर होगी तो क्या दिखेगा, वो ऊपर में आपको ब्रश बॉर्डर की तरह दिखेगा। तो सिमिलर, तो जिसकी वजह से पीसीटी का जो ल्यूमन होगा वो आपको नैरो दिखेगा, क्या दिखेगा, नैरो दिखेगा, क्योंकि ल्यूमन इज ऑक्युपाइड बाय द माइक्रोविलाई, और ब्रश बॉर्डर की तरह दिखेगी। तो आपको स्टार शेप्ड स्मॉलर ल्यूमन मिलेगा इन द पीसीटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, ठीक है। राउंड सेंट्रली प्लेस स्फेरिकल न्यूक्लियाइज मिलेंगे, और आप इसमें ना बेस पे देखोगे ना, तो बेस पे आपको थोड़ा सा डार्कली स्टेन मिलेगा, एंड दैट इज ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको थोड़ा सा बेसल आपको थोड़ा स्टेनिंग भी दिखेगी, और वो स्टेनिंग किसकी वजह से मिलेगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। So this is how you will identify that this is PCT. इसमें cuboidal, simple cuboidal to do low columnar epithelium मिलेगा, और brush border appearance होगा, ठीक है, brush border appearance होगा due to presence of
माइक्रोविलाई, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द पीसीटी। पीसीटी के बाद अब क्या होगा, स्ट्रेट ट्यूब्यूल आएगा। तो स्ट्रेट ट्यूब्यूल में भी क्या होगा, इसमें भी आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा, बट ये क्या होगा, इनके सेल्स जो होंगे पीसीटी से थोड़े छोटे होंगे, है ना। तो जो कट सेक्शन देखोगे तो दैट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू पीसीटी, और यहाँ पे भी इट इज ऑल्सो लाइन बाय द माइक्रोविलाई, बट यहाँ पे एज कम्पेयर टू माइक्रोविलाई कम होगा। पीसीटी में सबसे ज्यादा इट इज लाइन बाय माइक्रोविलाई, तो यहाँ पे भी आपको माइक्रोविलाई मिलेगा, बट इट इज लेस इज नंबर एज कम्पेयर टू पीसीटी, और ये छोटा भी होगा। देन विल मूव टू द लूप ऑफ हेलने। तो लूप ऑफ हेलने में क्या हुआ तुम्हें को कह रही हूँ आयुषी के नेक्स्ट बैठ में। बताओ, फिल्टर खड़े हो जाओ। फिल्ट्रेशन अपरेटस में क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी तो इतनी बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया। हाँ, स्टेटेड एंडोथेलियम, हाँ किसी ने बता दिया। और नेक्स्ट, किसकी एंडोथेलियम, कहाँ की एंडोथेलियम ऑफ ऑफ किसकी कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल तो सबसे लास्ट में आएगा। कौन सुन रहा है, कौन बैठा हुआ है, कौन टाइम पास कर रहा है, सब समझ में आता है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ऐसे भी दिख रहा था कि तुम यू आर हेयर बट यू आर नॉट हेयर, तो बट शांति से रहो और शांति से पढ़ाने दो मुझे। बैठ जाओ। हाँ, देन आपका क्या आ जाएगा, लूप ऑफ हेनले का थिन एंड थिक सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट आ जाएगा। तो थिन सेगमेंट की जो लाइनिंग एपिथेलियम होती है दैट इज सिंपल स्क्वामस से लेकर के लो क्यूबॉइडल होती है। क्या होती है, सिंपल स्क्वामस से लेकर के लो क्यूबॉइडल होती है। अच्छा, ये आपको जब सेक्शन में देखोगे ना तो आपको कम कहीं लगेगा कि ब्लड कैपिलरीज तो नहीं है, क्योंकि वहाँ वो भी कैपिलरीज तो आपको सेक्शन में मिलेंगे ही। तो हाउ यू डिफरेंशिएट कि ये थिन सेगमेंट है और ब्लड कैपिलरीज है, बताओ, कॉमन सेंस है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ब्लड कैपिलरी है क्योंकि उसकी भी लाइनिंग था होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये आपका थिन सेगमेंट का सेक्शन है या ब्लड कैपिलरीज का। हाँ बोलो भाई, उसमें ब्लड होगा सेंटर में। ये लास्ट वाला इमेज देखो, यहाँ पे भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी, बट अंदर में क्या होगा, थोड़ा सा रेड 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 डॉट मिलेगा, ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ क्या होगा, ल्यूमन क्या होगा, क्लियर होगा। तो ल्यूमन अगर क्लियर है तो दैट इज द थिन सेगमेंट एंड इट इज ऑल्सो लाइन बाय सिंपल स्क्वामस से लेकर के लो क्यूबॉइडल भी हो सकता है। देन आपका थिक सेगमेंट आ गया। थिक सेगमेंट में क्या होता है, लाइनिंग एपिथेलियम। ये सबको याद होना चाहिए कि किसका क्या एपिथेलियम है, ठीक है। देन थिक असेंडिंग सेगमेंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन उसके बाद आप आओगे तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये आ जाएगा, डीसीटी आ जाएगा। डीसीटी में भी आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विदाउट ब्रश बॉर्डर। तो पीसीटी और डीसीटी को डिफरेंशिएट करने का बेस्ट तरीका यही है कि दोनों में ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, बट वहां पे क्या आपको मिल रहा है, ब्रश बॉर्डर मिल रही है माइक्रोविलाई की वजह से, और तो इसका ल्यूमन छोटा मिलेगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ल्यूमन पूरा क्लियर होगा क्योंकि ब्रश बॉर्डर नहीं है, अदरवाइज दोनों की एपिथेलियम लाइनिंग सेम है। देन यू विल मूव टू द कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट की लाइनिंग एपिथेलियम क्या होगी, इट इज फ्रॉम सिंपल क्यूबॉइडल टू कॉलम, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल से लेकर के कॉलमनर एपिथेलियम तक हो सकता है। तो दीज, और लास्ट में तो ये ब्लड वेसल्स का दिखाया गया है। तो ब्लड वेसल, और इससे कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पे सेंटर में आपको ब्लड दिखेगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, इसका ल्यूमन क्लियर होगा। तो दिस इज ऑल। पीसीटी में क्या हुआ, सिंपल क्यूबॉइडल टू लो कॉलमनर। देन स्ट्रेट में सिंपल क्यूबॉइडल विथ लेस ये माइक्रोविलाई। देन आपका थिन सेगमेंट में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टू लो क्यूबॉइडल। देन थिक असेंडिंग में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन डीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे भी मिलेगा, बट इसका क्या होगा, सेक्शन फिर के इसके जो कट सेक्शन होंगे वो थोड़े बड़े आएंगे एज कंपेयर टू थिक असेंडिंग लिम्ब। देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आपका सिंपल क्यूबॉइडल टू कॉलमनर एपिथेलियम आ जाएगा। तो दिस इज द सेक्शन जो कि आपको हिस्टोलॉजी के सेक्शन में माइक्रोस्कोप में दिखेगा। तो ये अंडर
लो माइक्रोस्कोप दैट इज 10x, तो 10x में आपको यही दिखेगा, द अपर पोर्शन इज द कॉर्टेक्स एंड द लोअर पोर्शन इज द मेडुला। कॉर्टेक्स में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्फेरिकल स्फेरिकल, दीज आर द ग्लोमेरुलस व्हिच इज कॉल्ड द which is occupied by the tuft of capillaries। ये जो स्पेस दिख रहा है दैट इज द यूरिनरी स्पेस, और उसके बाहर आपका पेराइटल लेयर आएगा। तो ये ये सारे क्या है, आपको बहुत सारे ग्लोमेरुलस दिखेंगे, रीनल कॉर्पस्कल्स दिखेंगे, डिपेंडिंग किस टाइप का है। यहाँ पे होगा तो आपका जक्टा मेडुलरी है, यहाँ पे है तो आपका सब कॉर्टिकल वाला होगा, ठीक है। बाकी फिर और सारे सेक्शंस मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये पीसीटी दिखाया गया है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये आपका डीसीटी हो गया। देयर इज मेडुलरी रीजन में आपको क्या मिलेगा, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो दीज आर ऑल थिंग्स यू विल गेट इन द, कहाँ मिलेगा आपको, इन द मेडुलरी रीजन। तो इसको आइडेंटिफाई करने की तरीका क्या है, यू विल आइडेंटिफाई द लाइनिंग एपिथेलियम, और उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो डीसीटी है, पीसीटी है, क्या है, ठीक है। इन दोनों का यही डिफरेंस है ना। Now mesengium, what is mesengium? mesengium सेल क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि जो ग्लोमेरुलस में जितने भी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उनको साथ में होल्ड करके रखते हैं along with the extracellular matrix। तो दिस mesengium सेल along with the extracellular matrix, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, mesengium कहते हैं, ठीक है। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड द मेसेंजियल सेल। और ये मेसेंजियल सेल का काम क्या है, ये सारे जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं उनको होल्ड करके साथ रखना है। तो मेसेंजियल सेल अलोंग विद द जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होगा, उन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेसेंजियल सेल, ठीक है। इन मेसेंजियम का काम क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, एग्रीगेटेड प्रोटीन का फ्रॉम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, सपोर्ट करते हैं पोडोसाइट्स को, है ना, जो इनर लाइनिंग की बोमन्स कैप्सूल का, एज वेल एज सिक्रीशन करते हैं इंटरल्यूकिन और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर का। नाउ द नेक्स्ट इज द juxtaglomerular apparatus। It is a group of specialized cells which lies near the vascular pole of renal corpuscle। ये renal corpuscle है, उसके vascular pole पे कुछ group of cells होते हैं जिनको मिला के हम juxtaglomerular apparatus कहते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के सेल होते हैं, one is known as macula densa, one is known as juxtaglomerular cell and the third one is known as extraglomerular mesangial cell, जिसको हम लैसिक सेल्स भी कहते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले मैकुला डेंसा ही क्या है, जो डीसीटी का पोर्शन वस्कुलर पोल के पास आता है, so that become modified to form a, डीसीटी का लाइनिंग एपिथेलियम क्या था, it is lined by simple cuboidal epithelium, but the portion of DCT which lies in relation to the vascular pole वो मॉडिफाइड होकर के क्या हो जाते हैं, लॉन्ग टॉल कॉलमनर सेल्स हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं, न्यूक्लियस सब क्या दिखता है, क्राउडेड दिखता है। तो दैट इज कॉल्ड द मैकुला डेंसा सेल, ठीक है। मैकुला डेंसा सेल्स आर द मॉडिफाइड सेल ऑफ डीसीटी, ठीक है, विच लाई इन क्लोज रिलेशन विद द वस्कुलर पोल ऑफ अ रीनल कॉर्पस। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा। और मैकुला डेंसा का काम क्या है, ये सोडियम सेंसर है, डीसीटी में सोडियम के कंसेंट्रेशन को सेंस करता है। तो द फर्स्ट सेल in the juxtaglomerular is the macula densa. The second one is the juxtaglomerular cell. Juxtaglomerular cells, देखो ये एफरेंट आर्टेरियोल था, दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ से ब्लड आ रहा था। तो एफरेंट आर्टेरियोल क्या है, ब्लड वेसल। तो इस ब्लड वेसल में जो आपका ट्यूनिका मीडिया का जो स्मूथ मसल होगा, then it comes in relation with the macula densa cell। तो ये जो स्मूथ मसल सेल्स होंगे, ये क्या होंगे, ये स्पेशलाइज होकर के क्या बन जाएंगे, लार्ज स्फेरिकल शेप सेल with a rounded centrally placed nuclei। इन सेल को ही हम क्या बोलते हैं, juxtaglomerular cells। और ये सेल, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, रेनिन सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, रेनिन सिक्रीट करते हैं, तो बीपी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट आपका मैकुला डेंसा सेल हो गया, वो किसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, डीसीटी के लाइनिंग एपिथेलियम का। तो क्यूबॉइडल से लॉन्ग टॉल कॉलमनर सेल्स हो गए विद क्राउडेड, है ना, पास आके तो क्राउडेड न्यूक्लियाई। The second one, इसका काम क्या है, concentration of sodium को assess करना। The second one is the juxtaglomerular cell, the portion of the afferent arteriole which is in relation with the macula densa। वहाँ की जो ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल सेल होंगे, वो क्या होंगे, वो मॉडिफाइड होकर के आप क्या बना देंगे, स्फेरिकल राउंडेड सेल्स बनाएंगे, जिसकी सेंट्रली प्लेस राउंड न्यूक्लियस होगी। उनको हम क्या बोलते हैं, juxtaglomerular cells। और इन सेल्स का काम क्या है, रेनिन को सिक्रीट करना। The third one is called the
मैसेंजर लैसिक सेल, ये मैसेंजर सेल्स कहाँ थे, यहाँ थे। इनका काम क्या था, टफ्स ऑफ कैपिलरीज को एक साथ होल्ड करके रखना, बाइंड करके रखना। तो कुछ पोर्शन जो मैसेंजर सेल्स के होते हैं वो वस्कुलर पोल के पास भी रहते हैं। तो ये मैसेंजर सेल यहाँ पे मॉडिफाइड होकर के क्या बनाते हैं, लैसिक सेल। तो लैसिक सेल्स क्या होता है, ये स्टिलेट शेप का होता है। स्टिलेट होगा तो क्या होगा, इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हो गए, ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक नेटवर्क बना देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैसिक सेल्स कहते हैं। लैसिक सेल का काम क्या है, एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को एसेस करता है रेट को, और दूसरा क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ लैसिक सेल। एक तो इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन करता है, पहले आपको बताया था ना, इरिथ्रोपोइटिन रेनिन बनाता है, तो इरिथ्रोपोइटिन को बनाता है। और दूसरा क्या हो गया आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी कैलकुलेट करता है। तो व्हाट इज कॉल्ड दिस इज द, इसीलिए हम इसको एक्स्ट्रा मैसेंजर सेल भी कहते हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के बाहर है और स्पेशलाइज हो गया है वस्कुलर पोल के पास, और इसी ने क्या बना दिया, लैसिक सेल। तो दीज थ्री कंबाइनिंग नोन फॉर्म द जस्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इसमें शॉर्ट नोट भी आता है ना। तो इसी का ये आपको ये दिखाया गया है, ये टाप ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस हो गया, ये आपका यूरिनरी स्पेस हो गया, ये स्क्वामस एपिथेलियम दैट इज द पेराइटल लाइनिंग हो गई, यहाँ पे आपको पोडोसाइट्स मिलेगा। ये वस्कुलर सेक्शन है, तो वस्कुलर सेक्शन में ये एफरेंट आर्टेरियोल है, दिस इज द मैसेंजर सेल मैकुला डेंसा, ठीक है। और ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और जब आप स्लाइड देखोगे। ये सेक्शन है ना, ये कॉर्टेक्स वाला है और ये मेडुला है, ये अभी आपको बताया था। नाउ द यूरेटर, व्हाट इज यूरेटर, यूरेटर इज अ म्यूकोमस्कुलर ट्यूब जो कि यूरिन को कंडक्ट करेगा, कहाँ से, रीनल पेल्विस से ब्लैडर में। ये यूरेटर में 3 लेयर होती है, ठीक है। क्या क्या लेयर होती है, अभी तक जीआईटी में आपने 4 देखा है, यहाँ पे अभी यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, सब जगह क्या मिलेगी आपको, अंदर से बाहर 3 लेयर मिलेगी। पहली क्या है, म्यूकोसा लेयर है, देन यहाँ पे सब म्यूकोसा नहीं होगा, ठीक है। तो सब म्यूकोसा इज एब्सेंट, तो क्या मिलेगा, म्यूकोसा, स्मूथ मसल एंड एडवेंटिशिया। यूरेटर में सिर्फ और सिर्फ एडवेंटिशिया मिलेगा बिकॉज इट इज रेट्रोपेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम के पीछे है, तो रेट्रोपेरिटोनियम है, तो यहाँ पे सेरोसा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, एडवेंटिशिया मिलेगा। तो सबसे पहले जो यूरेटर होती है उसकी ल्यूमन क्या होती है, स्टार शेप्ड होती है ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ की जो म्यूकोसा है इट इज इन अ फोल्डेड मैनर, जिसकी वजह से जब आप सेक्शन देखोगे यूरेटर का तो द ल्यूमन इज स्टार शेप, ठीक है। आपको दिख रहा है प्रॉपरली, आपको स्टार शेप ल्यूमन मिलेगी। देन यू गेट द फर्स्ट लेयर दैट इज द म्यूकोसा। म्यूकोसा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अंदर क्या मिलेगी, पहले लाइनिंग एपिथेलियम मिलेगी दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और उसके बाहर आपको उसको सपोर्ट करने के लिए क्या मिलेगा, लैमाइना प्रोप्रिया। तो म्यूकोसा में क्या हो गई, 2 सब पार्ट हो गए, एक लाइनिंग एपिथेलियम दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लैमाइना प्रोप्रिया। लैमाइना प्रोप्रिया किस चीज से बनता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज उसमें ब्लड वेसल, नर्व सेल, लिम्फेटिक होगी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लाइनिंग क्या होगी, बेस पे क्यूबॉइडल, है ना, क्यूबॉइडल या लो वॉल्यूमिनस सेल्स होंगे। इनका काम क्या होता है, माइटोटिक होता है, डिवाइड करेंगे नया सेल बनाएंगे। उसके ऊपर आपको 2-3 लेयर क्या मिलेगा, पॉलीगोनल सेल्स मिलेगा। पॉलीगोनल सेल्स का काम क्या होता है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं। और सबसे टॉप मोस्ट पे क्या मिलता है आपको, अम्ब्रेला शेप मिलता है, विच में भी बाइन्यूक्लिएटेड। तो कहीं कहीं आपको अम्ब्रेला शेप क्या होगा, बाइन्यूक्लिएटेड होगा। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना है। तो दीज आर द लेयर्स दैट ये आपको दिख रहा है, क्यूबॉइडल, देन पॉलीगोनल, ऊपर अम्ब्रेला सेल। अम्ब्रेला शेप सेल्स होंगे वो बाइन्यूक्लिएटेड होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाहर आपको ये लैमाइना प्रोप्रिया की लेयर मिलती है। देन द सेकंड लेयर इज द स्मूथ मसल की लेयर। स्मूथ मसल की लेयर, अगर अपर 1/3, अगर यूरेटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो अपर 1/3 ऑफ द यूरेटर हैज गॉट ओनली 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल, इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीआईटी में आपने इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ क्या है, इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर, और अपर 1/3 ऑफ द यूरेटर में सिर्फ यही 2 लेयर मिलेगी। बट लोअर 2/3 ऑफ द यूरेटर में क्या होगा, आपको 3 लेयर मिलेगी, इनर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल और बीच में सर्कुलर, ठीक है। सबको समझ में आ गया। Upper 1/3 of the ureter has only got 2 layer of smooth muscle, that is inner longitudinal and outer circular, whereas lower 2/3 में 3 लेयर हो जाएगी, inner outer longitudinal हो जाएगा, बीच में सर्कुलर हो जाएगा। और सबसे बाहर क्या आपको मिलेगी, एडवेंटिशिया which is made up of dense connective tissue, और इसमें भी आपको ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फेटिक प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे सेरोसा नहीं होगा, only and only you will get a layer of dense connective tissue that is called adventitia because ureter is retroperitoneal।
तो होप सो कि यूरेटर की हिस्टोलॉजी सबको समझ में आ गई। सबसे इजी तरीका कि जब प्रॉपर आपको स्टार शेप मिलेगा, उसके बाद आप ट्रांजिशनल एपिथेलियम, लैमाइना प्रोप्रिया, फिर आप वो डिपेंड करता है कि अपर हाफ से लिया गया है सेक्शन या लोअर हाफ से। अपर से लिया गया है तो 2 लेयर मिलेगी स्मूथ मसल की, और लोअर से लिया गया है तो 3 लेयर मिलेगी, और बाहर में नाउ यूरिनरी ब्लैडर एक बैग है म्यूकोमस्कुलर जो कि इनको यूरेटर से एक्सटीरियर में एक्सपेल करेगा। इसमें भी 3 लेयर है, म्यूकोसा, स्मूथ मसल। बट यहाँ पे क्या होगा, आपने ब्लैडर पढ़ लिया है, सेरोसा और एडवेंटिशियल दोनों हो सकता है। सेरोसा की कवरिंग कहाँ पे होगी, सुपरफिशियल मतलब जो सुपीरियर सरफेस है एंड अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, बिकॉज वहाँ पे क्या है, वो पेरिटोनियम से कवर्ड है। So the superior surface of the bladder as well as upper half of the upper part of the posterior surface, you will get the simple squamous epithelium that is serosa because it is lined by peritoneum. Rest में आपको dense connective tissue का layer मिलेगा along with blood vessel and nerve, because वहाँ पे क्या है, वो non peritoneum है, वहाँ पे apart from it, सबसे पहले वहीं से start करो mucosa, तो lining epithelium क्या होगा, transitional epithelium, उसके नीचे क्या होगा, lamina propria which is made up of loose connective tissue, blood vessel, nerve, lymphatic होगी। यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम डिपेंड करेगा कि वेदर वो कितने लेयर की होगी, वेदर रिलैक्स स्टेट में है या स्ट्रेच स्टेट में है। तो अगर रिलैक्स स्टेट में है तो कितना होगा, 6 to 7 लेयर थिक होगा, और अगर स्ट्रेच स्टेट में है तो 3 to 4 लेयर थिक होगा, है ना, क्योंकि जब स्ट्रेच होगा तो पॉलीगोनल सेल स्ट्रेच होकर के नंबर ऑफ लेयर कम हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि कितनी लेयर थिक मिलेगी। तो फर्स्ट यू विल गेट, बाकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम वैसे ही होगा जैसे अभी आपको बताया था मैंने, तो यू विल गेट द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और यहाँ पे भी आपको फोल्ड ऑफ म्यूकोसास मिलेंगे। बट वहाँ तो क्या था, आपका प्रॉपर स्टार शेप ह्यूमन था, यहाँ नहीं। देन उसके बाद आपको लैमाइना प्रोप्रिया मिलेगा, देन आपको बहुत थिक सी स्मूथ मसल की लेयर मिलेगी, और लास्ट में आपको सेरोसा या एडवेंटिशिया मिलेगा। ये थिक, वेरी थिक स्मूथ मसल लेयर, एंड इट हैज गॉट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसमें बस याद रखना है ना कि यहाँ पे भी जैसे यूरेटर में था क्या, आउटर एंड इनर क्या था, लॉन्गिट्यूडनल था, बट मिड में क्या हो जाएगा, ऑब्लिक हो जाएगा। वहाँ मिड में क्या था, सर्कुलर। ओनली यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर कहाँ मिलेगा, दैट इज एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि उसका यूरेथ्रा के साथ जंक्शन होगा, वहाँ पे आपको सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मिलेंगे, स्मूथ मसल, क्योंकि वहाँ पे उसको एक्ट कैसे करना है, स्फिंक्टर वजाइटी की तरह, ठीक है। तो ओनली एट द जंक्शन ऑफ ब्लैडर और यूरेथ्रा का जो जंक्शन होगा, वहाँ पे जो मसल का अरेंजमेंट होगा वो सर्कुलर होगा, क्योंकि वहाँ पे उसको क्या होना है, स्फिंक्टर वजाइटी बनाना है, तो वो किससे बनेगा, सर्कुलर मसल से बनेगा। बाकी बीच में क्या होगा, यहाँ पे ऑब्लिक मसल होगा। वहाँ क्या था, आउटर इनर लॉन्गिट्यूडल, बीच में सर्कुलर, जहाँ है आउटर इनर लॉन्गिट्यूडल, बीच में ऑब्लिक, ये वही सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये रिलैक्स फेज है, ये स्ट्रेच फेज है। रिलैक्स में लेयर 6 to 7 है, यहाँ से 3 to 4 ना। यूरेथ्रा का पता नहीं साइड है कि नहीं, बट गेट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यूरेथ्रा मेल और फीमेल में क्या है, म्यूकोमस्कुलर ट्यूब है जो कि यूरिन को ब्लैडर से एक्सटीरियर में सेंड करेगा। मेल में यूरेथ्रा का लेंथ ज्यादा होता है 20 सेंटीमीटर, फीमेल में शॉर्टर 4 सेंटीमीटर। इसमें भी 3 लेयर है, बट यहाँ पे सब म्यूकोसा है। यहाँ पे क्योंकि ये एक्सटीरियर में, तो यहाँ पे एडवेंटिशिया और सेरोसा वाली लेयर होगी। यहाँ क्या होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद मसल लेयर, ठीक है। सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन, तो लाइनिंग एपिथेलियम क्या होगा, देखो लाइनिंग एपिथेलियम इन मेल यूरेथ्रा, जो ब्लैडर के साथ जहां से स्टार्ट होगा वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो एंड होगा यूरेथ्रा का वहां पे क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एक्सटीरियर में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और बीच वाला पोर्शन में क्या होगा, आपका सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। तो मेल यूरेथ्रा में 3 तरह के एपिथेलियम है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ब्लैडर के रिलेशन में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसके बाद आपको सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, और जहां पे वो एक्सटीरियर में आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम आगे, ठीक है। तो वहां पे क्या आ गया आपका, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। फीमेल में क्या होगा, वहां पे बस जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ ट्रांजिशनल, जहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट लेंथ है तो 2 ही है, वहाँ पहले ट्रांजिशनल होगा और नीचे में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा, बीच वाला नहीं, ठीक है। वहाँ पे बीच में आपको सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। देन यहाँ पे लैमाइना प्रोप्रिया का कोई लेयर नहीं है, ठीक है, सिर्फ एपिथेलियम लाइनिंग है। देन यू विल गेट स्मूथ सब म्यूकोसा, जिसमें आपका क्या होगा, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, एंड देन लास्टली आपको मसल लेयर मिलेगी, ठीक है। तो मसल कोट यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 2 ही लेयर होगी मसल की, इनर लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर सर्कुलर।
बट जो एकदम एंड पॉइंट होगा यूरेथ्रा में, वहां पे स्मूथ मसल की जगह पे क्या होगा, क्या होगा, स्केलेटल मसल होगा, एंड दिस विल फॉर्म द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी. तो मेल और फीमेल में आपको एपिथेलियम का डिफरेंस याद रखना है कि मेल में 3 एपिथेलियम हो गया, पहले ट्रांजिशनल, फिर स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एंड देन स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. फीमेल में 2 ही हुआ आपका, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. देन सेकंड लेयर आपको क्या मिली, यहाँ लेमाइन प्रोपिन नहीं मिल रहा, उसकी जगह क्या है याद रखना, सबम्यूकोसा की लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. एंड आउटसाइड में आपको सबसे बाद मसल कोट मिल रही है. मसल कोट यहाँ पे 2 ही है ना. तो याद रख सकते हो कि पूरे यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर स्टार्ट किया था तो 2 था, बीच में लोअर 2/3 ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में 3 है, और जब यूरेट्रा एंड कर रहा है, एंड पोर्शन है, तो वहां पे भी 2 ही लेयर मिल रही है. तो क्या लेयर मिल रही है, सिमिलर जो यूरेटर में स्टार्ट किया था आपने, इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर. बस याद रखना है कि एकदम आउटर पोर्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा स्केलेटल मसल में, बिकॉज उसको क्या बनाना है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. दिस इज ऑल टुडेज टॉपिक. थैंक यू.